Hello students, welcome to lecture number 6. So in our previous lecture we discussed about the Dalton atomic theory. So before discussing modern atomic theory, let us discuss about the limitations of Dalton atomic theory. This Dalton atomic theory was although quite successful in explaining laws of chemical combination by mass, but it failed to explain Gay-Lussac's law, which was the law dealing with the volumes. Volume के साथ डील करने वाले laws को ये explain नहीं कर सकती. It can explain laws of chemical combination, by mass, but failed और but could not explain कह सकते हैं हम, but could not explain Gay-Lussac's law. It could not explain Gay-Lussac's law. ये Gay-Lussac's law को explain नहीं करती. Second one is this theory, it could not explain why atoms of an element are similar. Atoms of an element are similar in each and every respect. And while atoms of different elements are different. While atoms of different elements are different. This theory will not be able to explain this thing. Why? It is so that atoms of same elements are different and different elements are different. It could not explain why atoms of same or different elements combine. आपके एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते ही क्यों हैं? Why it is so that they combine? And if we go by this, तो हम इसमें आगे भी ले कह सकते हैं what are the forces present between the various atoms of a substance or a molecule of a substance which result into the existence of substance into three different states, that is solid, liquid and gas. तो फोर्सेस की नेचर के बारे में नहीं बताता. लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो. Do not tell about forces between atoms or molecules. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस क्या हैं, इसके बारे में ये थ्योरी हमें कुछ भी नहीं बताएगी. So these are the limitations of Dalton atomic theory. Now, to overcome these limitations, a new theory was proposed which is called modified Dalton atomic theory, or it is also called modern atomic theory. So we will be discussing those postulates of modern atomic theory. So next is modern atomic theory. This theory is based on following postulates. The first one is atom is
no longer, atom is no longer indivisible, atom is no longer indivisible. आपका एटम जो है अब इंडिविजिबल नहीं है. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यू आर अवेयर अबाउट दीज पार्टिकल्स इन 9th. ठीक है. So I am not writing that it is divisible in electron, proton and neutron. You are aware of that. 9th में थोड़ा बहुत बताया गया आपको. तो एटम अब आपका जो है वो डिविजिबल नहीं, इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है. The second postulate of modern atomic theory is atoms of same element, atoms of same elements may differ with each other in their masses, जैसे हमारे पास क्लोरीन है 35 and chlorine 37. So these are the atoms of the same element, that is the chlorine, having mass 35 units and 37 units. ऐसे atoms को हम कहते हैं, such atoms are called isotopes. Such atoms of same element are called isotope. Elements are called isotopes. इनको हम isotopes कहेंगे. तो अगर आप आइसोटॉप को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज एन आइसोटॉप, देन यू कैन से दैट आइसोटॉप इज दोज एटम्स और आर दोज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ऐसे को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स. द थर्ड वन इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. Atoms of different elements may be similar in some respect. वो कुछ चीज़ों में मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे अगर हम कैल्शियम एंड आर्गोन कंसीडर करें, देन बोथ ऑफ दीज आर हैविंग एटॉमिक मास 40. इन दोनों का ही एटॉमिक मास कितना है? 40 है. ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास, इनको हम कहते हैं आइसोबार्स. दे आर कॉल्ड आइसोबार्स. तो आइसोबार को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर. Next is your next postulate is atoms of same or different elements may combine in ratio which may or may not be, or which need not to be, you कह लीजिए, which need not to be simple ratio. हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि ये सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड एटम्स. जरूरी नहीं है इसमें. फॉर एग्जांपल C12 S22O11, इसमें जो एटम्स का रेशो है दैट इज 12:22:11. सो दिस इज नॉट ए सिंपल रेशो. सो दिस इज द नेक्स्ट postulate of your modern atomic theory. The next postulate is atom is smallest entity. This postulate is as such, it is not changed. Atom is smallest
entity which can participate in a chemical reaction, ये पॉस्टुलेट आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी था और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी है, एज सच है। एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, मतलब वहां हमने कहा था कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल में अलग है। वहां पे लास्ट पोस्टुलेट था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हेयर इनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स अब ये इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इट मीन्स हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। सो दीज आर द postulates of modern atomic theory. Now, before going further in this topic, I would like to discuss a few numericals based on the various laws of chemical combinations, so that you have an idea how to solve the numericals. So, the first numerical problem I am taking up on the law of definite proportion. The question is, silver chloride is prepared by, दो मेथड से हम सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर इन नाइट्रिक एसिड, जब हम सिल्वर को डिजोल्व करेंगे नाइट्रिक एसिड में सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। एंड देन एडिंग एक्सेस ऑफ HCl, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ HCl को ऐड कर दिया। When your silver chloride will be precipitated, that silver chloride precipitate is then filtered, washed and dried. वाश किया, ड्राई किया और वे कर लिया उसको, ठीक है। तो उसका वेट आया हमारे पास 0.66 ग्राम। एक तो तरीका ये था। दूसरे में हमने क्या किया, सिल्वर इज हीटेड इन ए करंट ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस टिल इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू silver chloride. It was found that 1 gram of silver gave 1.32 gram of silver chloride. So illustrate the law of data, obey the law of definite proportion. कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इन दोनों केस में वेट निकालना है। जैसे इस फर्स्ट केस के अंदर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहा हूँ बहुत छोटे से हिस्से में। अगर हम इस फर्स्ट पार्ट को देखें तो इसमें क्या है, वेट ऑफ सिल्वर कितना है, वेट ऑफ सिल्वर इज 0.5 ग्राम। और वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना है, वेट ऑफ AgCl इट इज 0.66 ग्राम। मैं एक बार नोट कर लेता हूं इसको। इसमें वेट ऑफ सिल्वर कितना है, हेयर द वेट ऑफ सिल्वर इज 1 ग्राम एंड वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द सेकेंड केस इज 1.32 ग्राम्स। ये 1.232 ग्राम ये हमें दिया हुआ है। अब हमने कुछ नहीं करना इसके अंदर, आप सिर्फ ये निकालिए कि कितने वेट, सिल्वर का वेट फिक्स कर दीजिए आप, और उसके साथ कितनी क्लोरीन कंबाइन कर रही है दोनों में, वो वेट निकाल लीजिए। तो इस डाटा से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर वेट ऑफ क्लोरीन, इसमें हमारा वेट ऑफ क्लोरीन क्या हो गया, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड माइनस वेट ऑफ सिल्वर। तो हमारा वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना है, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड है 0.66 ग्राम और वेट ऑफ सिल्वर कितना है 0.5 ग्राम। तो वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना, वेट ऑफ क्लोरीन कितना हो गया हमारे पास 0.16 ग्राम। ये हमारी 0.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, देयरफॉर 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन combine with 0.16 gram, 0.5 gram of silver, 0.5 gram of silver combined with 0.16 gram of chlorine। ये हमारे पास आ गया। दूसरे डाटा में क्या है, वेट ऑफ क्लोरीन, दूसरे में वेट ऑफ क्लोरीन निकालें तो वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, वही फार्मूला लगाना है आपने, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड माइनस वेट ऑफ सिल्वर
तो ये हमारे पास है 1.32 माइनस 1, तो ये आ गया 0.32 ग्राम। ये कितने वेट के साथ कंबाइन कर रहा है? 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ। देयरफॉर वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ क्लोरीन विच कंबाइन विद 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, सॉरी 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर के साथ कितना हो जाएगा? 1 ग्राम के साथ 0.32, तो 0.32 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 दैट इज 0.16 ग्राम। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पे 0.5 ग्राम के साथ 0.16, यहां भी 0.5 के साथ 0.16, तो रेशो ऑफ मासेस ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? विच इज कंबाइनिंग विद द फिक्स मास ऑफ सिल्वर, दैट इज 1:1, सेम आ रहा है, सेम वेट आ रहा है। सो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ओबेड बाय दिस डाटा। अगर ये अलग आता तब हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट ओबेड, बट बिकॉज सेम वेट ऑफ सिल्वर के साथ वेट ऑफ क्लोरीन सेम आ रहा है, इट मीन्स योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ओबेड। द सेकेंड न्यूमेरिकल इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कॉपर फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। आपके कॉपर 2 अलग अलग ऑक्साइड बना रहा है। अगर 1 ग्राम of each oxide on heating in current of hydrogen gas give 0.88 gram and 0.799 gram of metal, show that data illustrate the law of multiple proportion। जब हम करंट ऑफ हाइड्रोजन में हीट करते हैं किसी भी ऑक्साइड को, तो उसकी रिडक्शन होगी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में। तो आपको जो ये है, ये मेटल के वेट दिए हुए हैं, तो हमारे दोनों डाटा में क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इट इज 1 ग्राम इन ईच केस, ठीक है। सेकेंड वन, वेट ऑफ मेटल गिवन बाय फर्स्ट ऑक्साइड, गिवन बाय first oxide, that is 0.888 gram. Third one is weight of metal given by second oxide, that is 0.799 ग्राम। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों मेटल में वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। देयरफॉर वेट ऑफ ऑक्सीजन in first oxide, that will be equal to 1 minus 0.888। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो 2 1 1 इतने ग्राम आ गया आपका। ये वेट ऑफ ऑक्सीजन है फर्स्ट ऑक्साइड में। वेट ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंड ऑक्साइड, ये कितना आ गया, 1 माइनस 0.799, that is 1 0 and it is 2 ग्राम। अब हमारे पास फर्स्ट ऑक्साइड में ये मेटल का वेट है, ये ऑक्सीजन का वेट है, सेकेंड ऑक्साइड में ये मेटल का वेट है, ये ऑक्सीजन का वेट है। हमने इन दोनों ऑक्साइड में या तो हम ऑक्सीजन का वेट फिक्स कर दें कोई एक, और उसके साथ कितना आपका मेटल कंबाइन कर रहा है वो वेट निकाल लें, या हम मेटल का वेट फिक्स कर दें और उसके साथ कितनी कितनी ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है दोनों ऑक्साइड में वो निकाल लें। उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं वेदर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ओबेड और नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट ऑक्साइड में मैं फर्स्ट ऑक्साइड के लिए निकाल रहा हूं, फर्स्ट ऑक्साइड 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ हाउ मच ऑफ मेटल, कंबाइन विथ 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर। मैं 1 ग्राम के साथ निकाल लेता हूं, 0.888 डिवाइडेड बाई
0.112, ये कट जाएगा आपका, डिवाइड कर लीजिए आप इसको, अप्रॉक्सीमेटली अगर करें हम इसको कैलकुलेट तो ये 8 पे कट जाता है, रफली हम 8 मान लेते हैं इसको, रफली 8, यहाँ पे 8 से गुना करेंगे, ये 12 के साथ 8 हो गया 96, तो 896 बनेगा, इसको 8 से गुना करेंगे, तो मैंने इसको रफली 8 ले लिया। दूसरे केस के अंदर क्या था हमारा, ओह आई हैव रब्ड दैट, इन सेकेंड ऑक्साइड हमारे पास क्या था 0.201 ग्राम of oxygen combined with how much of copper, that is 0.799 ग्राम। सो 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा, 0.799 डिवाइडेड बाय 0.201, इसको कैलकुलेट करें तो रफली जैसे उसको काटा था, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटें तो ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो 804 बनेगा, तो रफली यू कैन से इट इज़ 4। तो आपके फर्स्ट ऑक्साइड में वेट ऑफ मेटल 8 है और यहाँ पे क्या है 4 है, विच इज कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर रेशो ऑफ कॉपर कितना हो गया, रेशो ऑफ कॉपर इन 2 ऑक्साइड्स विच कंबाइंड विद द फिक्स mass of the your oxygen, that is 8:4, that implies 2:1, which is a simple ratio. So this is what the law of multiple proportion says, that the masses, ratio of masses of the one of the element which combined with the fixed mass of the second element is a simple whole number ratio. So here you are observing that the ratio is 2:1. So we can say that this data is illustrating, or it is elaborating, or it is according to the law of multiple proportions. So this is your second problem. The third numerical is based on the law of reciprocal proportion. ये आपके कंपटीशंस में आ जाता है, 11th में हालांकि इसको आउट ऑफ सिलेबस दिखाया हुआ है, लेकिन कंपटीशन में आता है इसलिए करा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 27.27% ऑफ कार्बन। हमारे पास एक एलिमेंट बना, एक कंपाउंड बना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो कार्बन है वो 27.27 है। इट मीन्स ऑक्सीजन कितनी हो गई इसके अंदर, इट इज़ 3, 7, 2, 7, तो 72.73 अगर वेट में ले 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इतनी कार्बन है और इतनी ऑक्सीजन है। सेकंड में कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन, ये हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है, इसके अंदर जो कार्बन है दैट इज़ 15.79, तो हमारा सल्फर जो है दैट इज़ योर 1, 2 और 4, 84.21। और तीसरा ये कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके अंदर सल्फर 50% और ऑक्सीजन भी 50%, ये 3 कंपाउंड है। अब हमने इस डाटा से ये इलस्ट्रेट करना है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ये डाटा जो है ओबे कर रहा है। तो अब आप देखिए ये 3 है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट देन देयर रेशियो इज सेम इन विच दे कंबाइन विद देमसेल्व्स। मैं इसमें थर्ड एलिमेंट मान रहा हूं आपके थर्ड एलिमेंट में इसमें मान रहा हूं आपको ऑक्सीजन को, ठीक है। तो मैं अब इसको फिगर को अलग तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक है कार्बन, दूसरी है सल्फर, दोनों सेपरेटली कंबाइन करते हैं थर्ड एलिमेंट के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, और दोनों आपस में कंबाइन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड बनाती है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि इसके अंदर और इसके अंदर ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ जो कार्बन और सल्फर का मास कंबाइन कर रहा है उसका जो रेशो होगा वो जिस रेशो में ये कंबाइन कर रहे हैं उसके या तो बराबर होगा या
इट विल बी ए मल्टीपल। तो पहले हम इसी रेशो को निकाल लेते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर रेशो क्या है हमारा, कार्बन और सल्फर के मासेस का रेशो है 15.79 रेशो 84.21। अगर हम इसको डिवाइड करें, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, बट यू ट्राई टू डू द रफ कैलकुलेशंस। 84.21 divided by 15.79, it comes out to be 1:5.3। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर बनाना चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 और 3:16 आ जाएगा। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें सारे रेशो को तो 3 3 जा 9 और ये 15.9 कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 16 एंड इट इज 3। अब इसके अंदर रेशो क्या है, 27.27 रेशो 72.73। मैं इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स कर देता हूं से 1 ग्राम। तो 1 के साथ फिक्स करूं तो मैं 1 रेशो, ये कितना आ जाएगा 27.27 डिवाइडेड बाई 72.73, इट विल बी 0.38 मान लीजिए, रफली इतना आ जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड में लिखे तो ये तो 1:1, मतलब इसमें 1 ग्राम के साथ करें तो 1:1 ही आ जाएगा। ये 1:1, 50-50 है तो 1:1। अब ऑक्सीजन का आपने 1 कर दिया तो हमारे कार्बन और सल्फर के रेशो, मासेस के रेशो क्या हो गए 0.38:1। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें इस रेशो को 3 से तो ये 1.14:3 आ गया। ये 1.1 मान लीजिए इसको, तो इसको 1.1 को छोड़ दीजिए, 1:3 आ गया ये, ठीक है। तो ये 3:16 है, ये 1:3 है। अगर ये देखना है कि मल्टीपल हैं कि नहीं है एक दूसरे के, तो इन दोनों रेशोज का रेशो ले लीजिए आप 3:16। या एक काम और भी कर सकते हैं, इस रेशो को कार्बन के को 3 करके तो इसको कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको सारे रेशो को भी फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही। तो अगर ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 7 27 34 3.42 और ये आपका 9 आ जाएगा, 9:3। इसको अगर हम रफली 3 माने देन यू कैन कैलकुलेट 3:9, तो 9:16 आ जाएगा। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द रेशोज। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप इससे चलें 1:0.38 और 3:16, तो इसको आप होल नंबर बना के इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, किसी भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके इसको, ठीक है। चाहे ये इसको 0.4 मान के रफली और फिर कर सकते हैं आप। तो आपका रेशो जो है वो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हमने अभी 3 से मल्टीप्लाई किया था इसको, तो ये हमारा रफली आ गया था 1:3, रफली 1.14 को छोड़ दिया था 1:3। तो 1:3 और 3:1 इन दोनों का रेशो निकालें 3:16, तो ये क्या आ गया 16:9। तो ये आपका रेशो आ गया, होल नंबर रेशो आ गया ये। तो आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, दैट इज बीइंग ओबेड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कैरी आउट द कैलकुलेशंस। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है कि दोनों रेशो को डिवाइड कर दीजिए आप। रेशो का मतलब ही यही होता है कि 1:3 का मतलब है 1/3, 3:16 का रेशो है 3/16। तो इन दोनों को डिवाइड करके भी देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है कि उन दोनों का जो रेशो है वो आपका क्या आना चाहिए, दैट शुड बी ए होल नंबर रेशो। सो आई थिंक टुडे वी शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, if you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Happy learning.